નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 9 વિષય હિન્દી, પ્રકરણ 2 ન્યાયમંત્રી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હિન્દીમાં આપણે પ્રકરણ બીજું ન્યાયમંત્રી જોઈ રહ્યા હતા અને લેખક શ્રી સુદર્શન. તો સૌ પ્રથમ આપણે લેખક પરિચય જોયો અને ત્યારબાદ આ જે કહાની છે એ કહાની નો અભ્યાસ પણ આપણે શરૂ કર્યો. આગળ આપણે જોયું કે સમ્રાટ અશોક પોતાના રાજ્યમાં ખૂબ જ વ્યવસ્થિત રીતે ન્યાયતંત્ર ચાલે તેમ ઈચ્છતા હતા અને કોઈક સાચા ન્યાયપ્રિય વ્યક્તિની તેઓ શોધમાં હતા કે જે સમગ્ર રાજ્યમાં ન્યાય પ્રણાલિકાનું વ્યવસ્થિત પાલન કરી શકે. અને આ માટે સમ્રાટ અશોક એક વખત છુપાવે છે એક અતિથિ તરીકે શિશુપાળના દ્વારે આવે છે. શિશુપાળ તેમને આવકારે છે અને બંને વચ્ચે જુદા જુદા વિષયોમાં વાતચીત ચાલે છે. શિશુપાળ જાણતો નથી કે આવનાર મહેમાન એ સ્વયં સમ્રાટ અશોક છે. વાતમાં શિશુપાળ કહે છે કે તેને રાજ્યની ન્યાય પ્રણાલિકા યોગ્ય નથી લાગતી, કારણ સાચો ન્યાય થતો નથી. આથી સમ્રાટ અશોક પોતે વિચાર કરે છે કે સાચો ન્યાય આ શિશુપાળ કેવી રીતે કરી શકે. માત્ર બોલવું સહેલું છે, પણ એનું પાલન કરવું ઘણું કપરું છે. છતાં શિશુપાળ કહે છે કે જો પોતાને કદાચ અવસર મળે તો તે સાબિત કરી શકે કે સાચો ન્યાય કોને કહેવાય. તો છેવટે અતિથિ વિદાય લે છે અને ત્યારબાદ બીજા દિવસે જ્યારે શિશુપાળને રાજાના દરબારમાં તેડું આવે છે ત્યારે શિશુપાળ રાજગાદી પર સ્વયં સમ્રાટ અશોક કે જેઓ અતિથિના સ્વરૂપે ઘરે આવ્યા હતા એમને જોઈને આશ્ચર્યમાં પડે છે. સમ્રાટ અશોક શિશુપાળને ન્યાયમંત્રી તરીકેની જવાબદારી સ્વીકારવા જણાવે છે અને તેમના હાથની આંગળી પર રાજમુદ્રા પહેરાવી દે છે. હવે આપણે આગળ જોઈશું. अब शिशुपाल न्यायमंत्री थे. अब शिशुपाल न्यायमंत्री थे. उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया. तो શિશુપાળ રાજ્યમંત્રી બન્યો અને રાજ્યમંત્રી બનતા જ તેમણે ન્યાય પ્રણાલિકામાં સારી વ્યવસ્થા કરવાનું શરૂ કરી દીધું. ઉનકે સુપ્રબંધ से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी. तो શિશુપાળની વ્યવસ્થાથી રાજ્યમાં ખૂબ જ શાંતિ રહેવા માંડી. किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था. કોઈને કોઈ જ પ્રકારનો ડર ન હતો. લોગ દરવાજે તક ખુલ્લે છોડ જાતે થે. લોકો પોતાના ઘરના દરવાજા પણ ખુલ્લા છોડીને જતા હતા. ચારોं तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई. चारे बाजू न्याय मंत्रीની ન્યાય પ્રિયતા અને જે પ્રમાણે ન્યાય કરવામાં આવતો એની જ ચર્ચાઓ ચાલતી હતી. સર્વત્ર શિશુપાળની વાહવા થઈ રહી હતી. लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी. सुबह होते ही ये बात चारों ओर फैल गई. तो 1 महीना बाद एक रात्रिए રાજ્યના એક પહેરેદારની હત્યા કરી દેવામાં આવી અને સવાર થતાં સુધીમાં આની ચર્ચા બધે જ ફેલાઈ ગઈ. લોગ બડે હેરાન થે. લોકોને ખૂબ જ આશ્ચર્ય થયું. શિશુપાલ કી તો નીંદ ઉડ ગઈ. શિશુપાળ પોતે ન્યાયમંત્રી હોવાથી તેમની તો ઊંઘ જ ઉડી ગઈ હતી. કારણ આ એવો બનાવ હતો કે સાચા આરોપીને શોધવાનો હતો. उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया.
તો શિશુપાળે પોતે ખાવા પીવાનું, ખોરાક લેવાનું, પાણી પીવાનું બંધ કરી દીધું અને સાચો અપરાધી કોણ છે એ શોધ પાછળ દિવસ रात एक करवा માંડ્યા। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। तो खूब ज प्रयत्न કર્યા પછી જ્યારે સાચા અપરાધી વિશે ખબર પડી તો શિશુપાળના આશ્ચર્યનો कोई पार न રહ્યો। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। तो सम्राट अशोके ज आ राज्यना पहरेदारनी हत्या करी थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। हवे शिशुपाल माटे मुश्केली ए हती कि राजा ज अपराधी हतो तो राजा ने अपराधी तरीके जाहिर करवानुं मुश्किल काम हतुं। शिशुपाल करे भी तो क्या करे, शिशुपाल करे तो पण शू करे। एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। एक बाजू तेओ न्याय मंत्री हता अने बीजी बाजू सम्राटना सेवक हता। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। न्याय कोई व्यक्ति ने नहीं जोतो, कोई सत्ता नहीं जोतो। न्याय में राजा होय कि सामान्य व्यक्ति होय कोई ज अंतर नहीं होतुं। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुँचे। बीजा दिवसे शिशुपाल दरबार में पहुँचा। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। राजा सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठा था। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो, तो पछी एने हाजर करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर इन्हें गिरफ्तार कर लो। तो धनवीर इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। संकेत सम्राट की ओर था। तो न्याय मंत्री शिशुपाले सम्राट अशोकनी सामे ज पोताना उच्च अधिकारी ने जणाव्युं कि धनवीर आमने हथकड़ी पहेरावी दो, हूँ आज्ञा आपું છું। संकेत सम्राट की ओर था। दरबार में निस्तब्धता छा गई। सन्नाटो छवाई गयो दरबार में, कारण सम्राट अशोक पोते ज गुनेगार साबित थया था। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस? तो शिशुपाले જ્યારે सम्राट अशोक ने गुનેગાर तरीके जाहिर कर्या तो सम्राट अशोक गुस्सा में आवी बोलवा मळ्या कि आटलू मोटू साहस। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही ना हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। धनवीर जोया शू करो छो, जे गुनेगार छे एने गिरफ्तार करो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। बीजी ज क्षणे सम्राट अशोकना हाथों में हथकड़ी पहरी देवामां आवी। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है। तो न्याय मंत्रीए कहूं कि अशोक तमारा पर पहरेदारनी हत्यानो आरोप लगाड़वामां आवे छे, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? शू तू अपराध स्वीकार करे छे? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, क्योंकि वह उद्दंड था, એટલે કે उद्धत હતો। सम्राट का उत्तर था, वह उद्दंड था या नहीं, तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है। तुम अपराधी हो,
और तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। तो न्याय मंत्री शिशुपाळे छेवटे सम्राट अशोकने મૃત્યુદંડની સજા આપી। આ સજા સાંભળીને સભામાં સન્નાટો છવાઈ ગયો। सम्राट ने स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। तो शिशुपाल पोतानी परीक्षा में साचा उतर्या था। आ बातनी खातरी सम्राट अशोक ने थई गई। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। तो शिशुपाळे सम्राट अशोकनी सोनानी मूर्ति मंगावी। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी कोई और नहीं, स्वयं सम्राट है। तो न्याय मंत्रीए ઊભા થઈને જણાવ્યું કે સજ્જનો, એ સત્ય છે કે હું ન્યાય મંત્રી છું અને એ પણ સત્ય છે કે अपराधी स्वयं सम्राट છે। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसीलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। शास्त्र में राजा ने सजा करवानो अधिकार मात्र ईश्वर ने ज होई शके छे। अतः एवं मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए। आथी हूँ आज्ञा आपू छूँ कि सम्राट ने चेतावनी आपीने छोड़ी देवामां आवे और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। तो सम्राट अशोकनी जग्या पर फांसी पर एमनी सोनानी मूर्तिने लटकाववामां आवे, जेनाथी लोकोने पण बोध मळे। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। तो જ્યારે બધા ચાલ્યા ગયા ત્યારે શિશુપાળે પોતે ન્યાયમંત્રી તરીકે હવે જવાબદારી નહીં ઉપાડી શકે એમ કહીને રાજમુદ્રા પાછી લઈ લેવા જણાવ્યું। सम्राट अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी। आपका साहस प्रशंसनीय है। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। तो सम्राट अशोक खूब ज प्रभावित थया शिशुपाळथी अने जणाव्युं के तमे मारी आँखों खोली दीधी छे, एटले के साची बात मने हवे समझ पड़ी छे। तमारा सिवाय आप कोई ज पद शोभावी शके एम नथी। अने आथी न्यायमंत्री शिशुपाळ पण निरुत्तर बनी गया। तो विद्यार्थी मित्रों, आ न्यायमंत्री का वार्तामां आपणे जोयुं कि केवी रीते शिशुपाळ न्यायमंत्री तरीकेनी पोतानी जवाबदारी उपाड़े छे अने केवी रीते पोते साचो न्याय करे छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने जे पण कोई जवाबदारी प्राप्त थाय ए खूब ज प्रामाणिकतापूर्वक निष्ठापूर्वक ए जवाबदारी उपाड़वी जोईए। ए आ वार्तानो सार है। तो यहाँ पर हमने न्याय मंत्री शिशुपाळ का सच्चा न्याय देखा। तो इस प्रकार अब इस कहानी के प्रश्नों के जो उत्तर है वह हम अगली बार देखेंगे। तब तक आपको इस कहानी को पढ़ना है और उसके शब्दार्थ और टिप्पणी नोटबुक में लिखना है। तो विद्यार्थी मित्रों,
હવે આપણે એના પ્રશ્નોના ઉત્તર હવે પછી જોઈશું. ત્યાં સુધી આ પાઠનું વાંચન કરી રાખશો અને શબ્દાર્થ લખી રાખશો. જય શ્રી કૃષ્ણ.